afternoon, everyone. Videos on, please. Right? This should not be the case. I have to tell you every time. I should see with the videos on. All right, guys. So, welcome. Good afternoon, everyone. Okay. So, what we are going to do right now is, okay, we are actually going to recap what we did the last time, and then we will move on to the second part. That is according to form. Okay. But first, we are going to test ourselves. Okay. Now recap में what I would say is मैं सिर्फ बता देती हूँ लास्ट टाइम मैंने क्या किया था and do not worry, everything will be shared with you. ठीक है, just hold on a second. And हाँ guys, we are going to have an online test also right now on the spot. Don't worry, panic नहीं होना. This is just to test yourself, right? एक बार तुम लोगों को खुद को भी पता चल जाए तुम लोग कहाँ खड़े हो. Okay, ठीक है. So as we were doing, right, we started with transformation of sentences. Okay, transformation of sentences. Majority, right, हमारा जो doers direct है उसका majority यही ले ले. Sorry, right, this will not happen again. Okay, so as I was saying, कि according to use का मतलब है according to the meaning of the sentence. ठीक है, according to the meaning of the sentence. अब उसमें we have 5 types. Right, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ. So the first one that we did was assertive, okay? assertive negative, and affirmative. Negative and affirmative. ठीक है. So this was the first type. मतलब कि ये सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. Assertive का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव इज नेगेटिव, एंड affirmative इज कंफर्मिंग. affirm का मतलब है कंफर्म करके बोलते हैं, राइट? So assertive sentence and affirmative statement है guys. assertive sentence है and affirmative statement है. ठीक है. सेंटेंस का मतलब है वो सिंपल सा होता है, उसमें आगे पीछे प्लस माइनस कुछ होता नहीं, राइट? affirmative एक स्टेटमेंट है. It can be a positive statement, it can be a negative statement. ठीक है. So ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस था. फिर हमने बात किया था द सेकंड टाइप. So the second type was declarative. ठीक है. Declarative wherein we are announcing something, right? And it is always positive. It is always positive, right? जो हम जनरल पब्लिक को बोलते हैं. Say for example, if I say कि in the next session we will be having a test on whatever we have done. हमने जो भी अभी तक किया उस पर एक टेस्ट होगा. Just an example. पैनिक होने की जरूरत नहीं. ठीक है. So that I am declaring it, right? मैं announce कर रही हूँ. I am not asking for your opinion, right? Declaration में हमेशा no one has asked for an opinion. वो सिर्फ बोल देते हैं. It's always one sided. ठीक है. All right. फिर the next one is imperative, right? Imperative के अंदर, ठीक है, imperative के अंदर we had सब types जैसे कि request, right? फिर command, right? फिर order, right? फिर blessing, right? फिर permission. ठीक है. तो these are all imperative sentences. Okay, blessing is also called as optative sentence. Why? Because it is always positive. Optimistic होता है, positive होता है, इसे इसको optative sentence होता है. ठीक है. The next fourth type what we talked about was exclamatory sentences, right? Exclamatory, right? Exclamatory का मतलब है wherein we are actually expressing ourselves, extra emotions हो, feelings हो, जो express करता है उसका exclamatory बोलते हैं, right? Parts of speech में we had something called interjections. Alas, oh, ये, hooray, wow, ये सारे interjections हैं. ठीक है. अब वो कहाँ पे यूज होते हैं? That is being used over here in the exclamatory sentences. ठीक है. Fifth and the last one we talked about was interrogative sentences. Interrogative sentences. ठीक है. Interrogative sentences, like I said, was like questions पूछते हैं, right? Interrogate, question,
हम सवाल करते हैं, राइट? दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. उसके अंदर देयर आर टू टाइप्स. वन इज द WH क्वेश्चन, वेयर, which, how, whose, whom, why. ठीक है, ये WH क्वेश्चंस का मतलब है वर्ड स्टार्टिंग में WH. ठीक है, हाउ भी इंक्लूडेड है, WH नहीं है, बट हाउ इज दैट, राइट? And the next type of interrogative sentence is a question. That is a yes or no question. Are you listening to me? Say yes. Shreya, are you there? Yes. Right? तो ये yes or no वाले questions हैं. ठीक है, अब yes or no वाले questions कैसे होंगे पता है? Are you okay? Can I come in? May I go out? Can I borrow your pen? Is it possible to come? ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी मॉडल्स के साथ स्टार्ट होते हैं, राइट? यस और नो क्वेश्चन में सिर्फ यस या नो, नॉट मोर नॉट लेस, इतना ही बोलना है, राइट? एंड पॉइंट नंबर 1, दे स्टार्ट विद ऑक्सिलरीज, या तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सारे के साथ स्टार्ट होती हैं, राइट? या मॉडल्स के साथ, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, कैन. ठीक है, तो ये सारे के साथ जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसको हम अब ये यस और नो बोलते हैं. वी कैन आल्सो आस्क इन दिस मैनर, महक, आर यू देयर? यस, महक इज देयर, राइट? हम ऐसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं. दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो वी आर क्लियर विद हाउ अकॉर्डिंग टू यूज. ये वाला पता चला सबको? यस, नो. ओके, ऑलराइट. ठीक है, now what we are going to do is we are going to have an online test. ठीक है, ऑनलाइन में आई एम गोना अनम्यूट एवरीवन. ठीक है, इफ आई हैव द परमिशन आई एम गोना अनम्यूट एवरीवन. ठीक है, वो अनम्यूट एवरीवन सबको बात करने के लिए नहीं है, वो अनम्यूट एवरीवन, राइट, सो दैट यू कैन एक्चुअली आंसर माय क्वेश्चंस. ठीक है, बार बार लगातार मैं अनम्यूट नहीं करूंगी. ठीक है, ऑलराइट. सो ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड. जय, अगर बैठे हो कैन यू प्लीज अनम्यूट एवरीवन? सबको अनम्यूट कर दो. ये टेस्ट के लिए मुझे आई नीड एवरीवन टू बी अनम्यूटेड. सो गाइस सी, so what we are going to do over here is change the following complex sentences into simple. Okay. Guys, just hold on a second. ठीक है, तो what we are going to do is we are actually going to, ऑनलाइन में I'll present टेस्ट होगा, उसमें तुम लोग को मुझे बताना है कौन से सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट. डोंट लुक एट द लिंक, तुम लोग का कोई मतलब नहीं है. तुम लोग जस्ट टाइम वेस्ट करोगे नो लुकिंग फॉर इट. ओके ओके गाइस, यहाँ देखो. ठीक है, तो यहाँ है सी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस का मतलब क्या है? जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो इंस्ट्रक्शन को तुम्हें फॉलो करना है. ठीक है, व्हाटसोएवर इज द इंस्ट्रक्शन. ओके, शी सिंग्स सो वेल दैट एवरीवन बाइज हर रिकॉर्ड्स. Right, so what can be the answer over here? She sings so well that everyone buys her records. Those who want to speak can, एक सेकेंड, अच्छा, जिसको भी बोलना है वो हैंड रेज करे. आई विल अनम्यूट यू. चलो ऐसे करते हैं. Yes, who wants to answer? ये बहुत इजी है ट्रांसफॉर्मेशन. कम ऑन. Yes, बोलो. She is so famous. ये आगे बोलो आनंद. कंप्लीट द सेंटेंस. She sings so well that. Okay. Say the sentence once again. मुझे वो थोड़ा टुकड़ा में लगा. It was broken. Can you repeat the answer once again? She sings so well that. आनंद रुक जाओ, पहले फॉर्म करना. हरी, you want to answer? Yes, I knew it. Yes, हरी, बोलो. She is a good singer, that's why everyone buys her records. She is a good singer, that's why everyone buys her records. Okay. Who else? Someone else raised their hand. और किसने रेज किया था?
Okay. Mehak wants to answer. Yes, Mehak, bolo. She is singing so well that everyone buys her record. She's singing so well that everyone buys her records. Okay. Anyone else wants to answer before I show him the answer? किसी को कोई और आंसर देना है? ठीक है, चलो. She is such a good singer that everyone buys her records. Right? Mehak, you are close. See, your answers are not wrong, but उसका structure एक होना चाहिए. She is such a good singer that everyone buys her records. हमारा instruction क्या था कि she is start करना है. बात सही कि गलत? Right? तो she sings so well के बदले में she is such a good singer. Synonymous है, is giving out the same meaning. हरी, doubt है? Doubt है? नहीं है. Got it? So this is how we transform the sentence. Sentence का meaning change नहीं हो रहा है. हमने सिर्फ words को synonymous words के साथ exchange कर दिया. That's about it. ठीक है? All right. चलो, moving on. Okay. Would you like to join our local drama group? Who would like to answer this? Would you like to join our local drama group? Hand raise करना. Hari, you want to answer? Okay. Bolo Hari. Are you interested in joining our local drama group? Are you interested in joining our local drama group? Okay. I think you're very close to the answer. Anyone else who wants to answer? किसी और का भी hand raise मैंने देखा था. Okay. Yes, Tisha, बोलो. One second, बोलो. हाँ बोलो. मैम सेम आंसर था. Same answer. Okay, that is equals to Hari. Okay, किसी को कुछ different बोलना है? किसी को कुछ different में है? You want to try? Try करो. नहीं? Okay. Let's see if answer है यही है. Are you interested? Oh wow. Spot on, huh, Hari? Very nice. Yes, it is the correct answer. Are you interested in joining our local drama group? So you see, when we are actually transforming this, and हम जब transform कर रहे हैं, meaning change हुआ हमारा? Meaning change हुआ नहीं हुआ ना? Okay. टीशा को कुछ बोलना है टीशा? Okay. ठीक है? So this is how you do it. Okay. Let's move on. 5 sentences कर लेते हैं. I was silly to say that. ये short and sweet है. उवेश कहाँ गया? उवेश is not answering. उवेश अभी आया वापस. Yes, उवेश बोलो. इसका आंसर दो. Yes, ma'am. Oh, I was silly to say that. Your sentence should begin with I wish. I wish. Try करो. Come on. Okay. उवेश एक काम करो. Structure your answer. तब तक मैं फिजा का आंसर ले लेते हैं. Is that okay? Then you raise your hand. I'll come back to it. I'll come back to you. Don't worry. मैं नहीं ऐसे छोड़ने नहीं वाली. Yes. Who raised? Tisha. बोलो Tisha. I wish I could say that. I wish I could. Could say that. Okay. I wish I could say that. Okay. Hari. Hari's answering. Oh, Hari. Bolo. I wish I would not have said that. Okay. I wish I would not have said that. Okay. Okay. Wait. Atif. I'll come back to you. Uvesh, are you ready with your answer? Yes, ma'am. Okay. Bolo. I wish I could not said that. Okay. I wish I could have said that. Okay. Okay. Wait. ऐसा क्या अलग-अलग आंसर है? फिजा. बोलो फिजा. I wish I should not have said that. I wish I should not have said that. Okay. 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 और किसने hand raise किया था? रेजा. अरे रेजा को तो मैंने देखा ही नहीं. Yes, रेजा. रुक जाओ. बोलो. I wish I didn't say that. I wish I didn't say that. I all variety of answers. देखते कौन सा वाला यहाँ match होता है. I wish I hadn't said that. I wish I had not said that. Guys, you are very close. Not wrong. Wrong नहीं हो. You guys are very very close. Okay. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? Doubt है? Yes. See, we are all very close. But वो क्या बोलते हैं? Verb अलग हो गया. ठीक है. You all were very very close. Okay. Shall we continue? आगे बढ़े? Yes. मजा आ रहा है इसमें. Okay. London is bigger than Oxford.
So you should begin Oxford isn't. अब form करो. Take your time, form the answer and then raise your hand. हरी? नहीं. Okay, 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 okay. हाँ, हरी का तो पहले ही हाथ ऊंचा हो जाता है. एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ. Yes, हरी बोलो. Oxford isn't bigger than London. Okay, Oxford isn't bigger than London. Okay, ठीक है. चलो, अब ओवेश को पूछ लो. Oh, Yes, ओवेश Oxford. बोलो. Oh, same answer. Oxford isn't bigger than London. Okay, that is equals to Hari. Now Hari को follow. Hari, you have so many followers. मैम मेरे को Okay. पहले से पता था. Oh, ऐसा है. ठीक है. Yes, Reza. Oxford isn't as big as London. Oxford isn't as big as London. Somebody is using greens over here. Yes, Reza, बोलो बोलो. Oxford is smaller than London. Okay, Oxford is smaller than London. Okay, महक तुम्हें कुछ बोलना है? अरे कमेंट तो करो, ट्राई तो करो. Come on, try. Wait. Yes, try. Come on. Oxford isn't bigger than London. Same. Oxford isn't bigger than London. Okay. Yes, Tisha. Tisha, sorry. एक सेकंड होगा. बोलो. Oxford isn't small than London. Oxford isn't smaller than London. Okay, okay, okay. Tisha ने बोल दिया, उवेश ने बोल दिया. Okay. Let us see. Bigger है कि smaller है? Isn't as big. Reza's answer. Isn't as big as London. Guys, पता चला? देखो, इसमें हमें क्या करना था? इसमें है ना, देखो, bigger यानी कि इसमें comparative degree of comparison. Adjective के वो degrees of comparison जो हमारा करना बाकी है, but I'll make you understand. ठीक है? 3 degrees of comparison है, that is positive, comparative and superlative. Okay, Tisha wants to. Tisha कुछ बोलना है? Okay, ठीक है. All right. So this is comparative degree of comparison. हमें ट्रांसफॉर्म इस तरीके से करना है. वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन सच अ मैनर मीनिंग इज नॉट चेंज. बच्चा लोग, ये स्टैम्प इट इन योर माइंड. ठीक है? व्हेन वी आर चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम वन टू अनदर, हमें मीनिंग को चेंज नहीं करना है. कंटेंट वैसे के वैसे ही रहेगा, वर्ड्स उस तरीके से चेंज करना है, राइट, ताकि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसके साथ मैचअप हो, उसके साथ मैचअप हो. देखो, बिगर दैन वो कंपैरेटिव में ही रखना है, तो कंपैरेटिव में हम कैसे रखेंगे, राइट? एज एंड एज, still the same meaning. Isn't as big as London. मतलब क्या हुआ? लंदन ऑक्सफोर्ड से बड़ा है. It is bigger than London. Got it? ये सेंटेंस आंसर के पीछे का लॉजिक पता चला? Yes, we'll come to it. Don't worry. ठीक है? बट ये तो पता चला ना, कंपैरेटिव को जब हम पॉजिटिव में कर रहे हैं तो वर्ड एज एंड एज आना चाहिए. वो वर्ड वापस से बेसिक फॉर्म में चला जाएगा. बट व्हेन यू आर एडिंग एज एंड एज, राइट, तो कंपैरेटिव फॉर्म वैसे ही रहेगा, भले वो हम वर्ड्स चेंज कर रहे हैं, राइट, बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम. ओके, चलो एक और कर ले, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. वन मोर. ओके, सो हिज पेरेंट्स आर अगेंस्ट हिम स्टडीइंग म्यूजिक. तो योर सेंटेंस शुड बिगिन इस तरीके से. रुक जाओ. हिज पेरेंट्स ट्राई टू स्टॉप हिम. उवेश का हाथ पहले ही ऊंचा हो गया. क्या बात है उवेश? रुक जाओ. मैम मैंने अभी करा भी नहीं है. क्या नहीं है? ओके, तो लोअर करो तो मुझे पता चले. ओके, रुक जाओ. फिजा ने किया है. फिजा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ. ओए, रेजा, रेजा, you have raised your hand right now? Yes. रुक जाओ. His parents tried to stop him from studying music. His parents tried to stop him from studying music. Okay, so we have Mr. Hari wants to answer. Yes, Hari. मैम वही था. Equals to Reza. Okay. Yes, Reza, बोलो. Ma'am, same answer. Equals to Reza. Oh, Reza, you are having now followers. Yes, Uvesh. Same. कोई तो अलग से सोचो. Okay. Tisha. Same answer. Okay. देखते हैं. Reza, let's see. Oh, Reza, your answer is actually correct. ठीक है. His parents tried to stop him. Studying music नहीं आएगा. ये इंटरनेट वाला wrong है. Reza is actually correct. Tried to stop him from studying music. Right? Against, अगर मुझे वो वाला मीनिंग लाना है तो I need to bring in from. ठीक है? All right, guys, इसको इग्नोर करना. This is not it. Okay. Right.
Now coming back to the screen. एक second रुका. Stop share. Okay. So are we clear? ये first part पता चला how to do it? मजा आया तुम लोग को ये online? This is how I'm going to do it. हमारा offline भी होगा. Wherein I'll be sending a set, but इसमें मजा आया. इसमें at least you'll come to know where your mistake on the spot में पता चल जाएगा. That is one. Secondly, interactive होगा तो सबके आंसर सुनाई देगा. सब अलग अलग क्यों है? Why are they so different? ठीक है. Now, moving on to the next one, right? That is according to form. ठीक है. Just hold on a minute. Okay. Before I move on, किसी को कुछ पूछना है? Yes, no. नहीं. Okay. Just give me a minute. ठीक है. According to form, transformation sentence में करके रखिए भाई. ठीक है. किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. I know तुम लोग को. Right? This is not that difficult. Okay. अगर हम लोग को समझ में आ जाता है, it is not that very difficult. Okay. Just give me a minute. मैं ये share start कर दूँ. Okay. Just give me one more minute. तो at least तुम लोग को आज ये तो हो जाएगा हमारा. Okay. ठीक है. तो even if I give you an exercise over the weekend, you do it, and next session में you can ask me. Okay. All right. Can you see my screen? Screen दिख रहा है? Yes. Okay. Right. अब guys, concentrate. अब मुझे हमारे सारे दिमाग और आंखें सब इधर से. ओके. देखो, अकॉर्डिंग टू यूज में हम लोग क्या कर रहे थे? राइट. अकॉर्डिंग टू यूज का मतलब है इट वाज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, कंटेंट. राइट. दे हैड 5 फॉर्म्स. ठीक है. अब इट इज अकॉर्डिंग टू फॉर्म. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फॉर्म में देयर आर 4 टाइप्स. रुक जाओ, लिखना मत, पहले सुन लो. अकॉर्डिंग टू फॉर्म, फॉर्म का मतलब है स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है, बट वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर फ्रॉम वन to the other, right? So there are 4: simple sentence, compound sentence, complex and compound complex. ठीक है. मेन 3 हैं. चौथा वाला is just for your information, FYI, for your information. बाकी 3 हैं, only 3: simple, compound and complex. ठीक है. FYI के लिए compound complex हम करेंगे. Don't count it into, take that in consideration. Okay, right? So when we are talking about simple sentence, guys, अभी इसमें है ना फंडा क्या है पता है? इसमें फंडा is, okay, मैं बताती हूँ. लिखते जाना अगर लिखना है तो. देखो, नंबर 2, I will share my whiteboard also, तो तुम लोग को पता चले मैं क्या बोल रही हूँ. स्विच करना पड़ेगा मुझे. Okay. Because बोलने से और बताने से there is a difference. Okay. Can you see the whiteboard? मुंडी हिला दो. Thank you. Okay. So the next one is according to form. Now according to form में we have 3 types: simple, compound, complex. Right? ये 3 main हैं. ये 3 main हैं. Right? And for FYI, last one is compound complex. Please don't take that into consideration. उसको हम transform भी नहीं कर सकते. Right? It's really difficult to transform that one. Okay. ठीक है. So according to form we have 4 types: simple, compound, complex and compound complex. ठीक है. इतना पता चल गया ना? ये वाला जो फॉर्म है, right, is mainly, ये चारों जो यूज है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन कंजंक्शंस. राइट. इट इज मेनली बेस्ड ऑन कंजंक्शंस. अब कंजंक्शंस में 2 टाइप के यूज हो रहे हैं. बताते पहले फ्रेमवर्क समझ लो. हमें चेंज कैसे करना है, हमें उसमें से कंजंक्शंस राइट तोड़ मरोड़ के उसको यूज करना है. अब कंजंक्शंस 2 है. राइट. वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग. क्या है धीरे धीरे बताती हूँ, इसको तो डाइजेस्ट करो. ऑलराइट. So this whole thing
बेस्ड ऑन फॉर्म वाला एक्सक्लूड कर ला दे. Okay, based on form वाला, right, is depend based on the use of conjunctions. हम conjunctions को कैसे use करते हैं. ठीक है, दो टाइप है, coordinating and subordinating. ये वाला नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो. फिर I'll move on to my next clip. Note this down first. ये basic है आपका framework. Then only you will understand that one. हरी, screenshot लिया क्या? Good use of technology. But नोटबुक में भी कुछ लिखा करो, राइट? नहीं तो तुम लोग लिखना भूल जाओगे. वो पता है ना, एग्जाम्स ऐसे 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 नहीं देना है, हमें ऐसे देना है, तो इसका प्रैक्टिस होना पड़ेगा. ओके, गिव मी अ थम्स अप व्हेन यू फिनिश. इज इट रेनिंग आउटसाइड हो रहा है? यहाँ पर तो बारिश हो रही है. हरी देख रहे हैं? नहीं, अरे क्या बात है. तो हमारे पारुल में ही बारिश हो रही है. भगवान बहुत जल्दी मेहरबान हो जाते हैं. Okay, guys, did you finish? If and when you finish, please give me a thumbs up. Okay, nice. So I am now going to share. Okay, going back. Okay, now can you see this? अब पेन को नीचे रखना on the notebook and eyes on the screen. ये समझना बहुत जरूरी है, right? So just like I said, right, according to form. Now when we are transforming the sentences according to form, it is mainly based on the use of conjunctions, right? इसे इसको हमने चार तरीके में डिवाइड किया है. Now the first one, simple sentence. सिंपल है, देयर आर नो कंजंक्शंस एब्सोल्युटली एट ऑल. उसमें कोई भी कंजंक्शंस प्रेजेंट नहीं है, इसे उसको सिंपल बोला गया है. ठीक है, इसे उसको सिंपल बोला है बिकॉज़ देयर इज एब्सोल्युटली नो कंजंक्शन प्रेजेंट एट ऑल. अब इफ यू गो सी ओवर हियर, अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. नॉर्मल सेंटेंस जैसे होते हैं ना, वैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है. ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट? एक सिंपल सेंटेंस में इतना होगा. ठीक है, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, राइट, दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. ठीक है, इट एक्सप्रेसेस यानी कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, राइट? इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. उसको ना किसी की सपोर्ट की जरूरत है, ना कोई एडिशन की जरूरत है. ठीक है, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, मतलब इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. ओके, सो फॉर एग्जांपल देखना. द बेबी क्राइड फॉर फूड. ठीक है, द बेबी क्राइड फॉर फूड. जैसे इसमें सब्जेक्ट है द बेबी, वर्ब आया ये क्राइड फॉर व्हाट, ऑब्जेक्ट आया फूड, क्राइड फॉर फूड, प्रेडिकेट हो गया कंप्लीट, राइट? इसमें और कुछ भी मिसिंग नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए सिंपल सेंटेंस. नाउ एक बात बताओ, कोई भी कंजंक्शन दिख रहा है इसमें? कनेक्टर या लिंकिंग वर्ड जैसे बट, सो, ऑल्दो, देयरफॉर, कुछ दिख रहा है इसमें? राइट, नहीं है, राइट? So that is why it is called as a simple sentence. ठीक है, simple sentence you understood? कोई डाउट है किसी को? Yes, no? All right, give me a thumbs up. Okay, all right. Now, moving on. Okay. So next is compound sentence. ठीक है, अब compound sentence में compound साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑल्सो, जब हम साइंस कर रहे थे केमिस्ट्री, या कंपाउंड केमिकल, मतलब कंपाउंड का मतलब क्या है? इट्स अ मिक्सचर, राइट? अगर हम नॉर्मल उसमें भी देखने रहे तो कंपाउंड का मतलब है मिक्सचर, मिक्स कर रहे हैं, राइट? तो इसमें ऑल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. नाउ गाइस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेट मी क्लैरिफाई दैट फॉर यू. लिख भी लेना, मैं जैसे बोल रही हूँ. इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, राइट, इज अ सिंपल सेंटेंस. An independent or a main clause is a simple sentence. Okay, मतलब सब कुछ है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उसमें है, इसे उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं. क्लॉज का मतलब है सेंटेंस. ठीक है, तो जब भी वो टर्म आता है, व्हेन इट कम्स कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि मेन क्लॉज है, राइट? तो सिंपली इट मीन्स कि भाई इट इज हैविंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस.
Got it? Independent clause and main clause पता चला, right? So please do not be confused. बार बार लगाता है ये switch होकर use होगा. So you need not be confused. ठीक है. अब a compound sentence has two independent clauses. ठीक है. दो independent clause है. हम connect कर रहे हैं. बताती हूँ. Right. An independent clause is a part of a sentence that can stand alone because it contains, जैसे मैं अभी बोला. Okay. दो independent clauses को connect कर रहे हैं. Right. A compound sentence is two independent clauses together. Right. ठीक है. दो sentences को join कर रहे हैं. We are actually joining two sentences together with the help. अब आएगा the entry of the conjunction. Right. Basically, it contains two simple sentences. फंडा वही है. Right. अब they are joined by what? A conjunction. Right. They are joined by not any conjunction. They are joined by a coordinating conjunction. Right. A coordinating conjunction, right, is a conjunction which joins two independent clauses together. Right. फर्क है. Right. Coordinating conjunction मतलब and, right. अब again a coordinating conjunction. Have you heard about fanboys? Fanboys सुना है तुम लोगों ने? Fanboys? अरे वो वाला fanboys नहीं, जो हम fan बनते हैं. Right. एक second. Fanboys, right? If I go to say, एक second. Right? ये नीचे नहीं आ रहा है. Okay. एक second होगा ना. ओ बाप रे, ऊपर नीचे हो गया. Guys, just hold on a second. नहीं तो तुम्हारा दिमाग है ना, guys will get confused. Okay, right. Coordinating conjunctions को याद करने का एक आसान तरीका है. रेजा, श्रेया और आकृति को याद होना चाहिए, हमने लास्ट ईयर किया था. Okay, ठीक है. So I am talking about coordinating conjunctions. ये है ना, क्या करोगे? नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंसेस के नीचे लिखना. कंपाउंड सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उसके नीचे लिखना, तो तुम लोग को वो कनेक्शन याद रहेगा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. Okay. Right. Hold on. Conjunctions. Right. One second. Hold on. Okay. Guys, just a minute. My screen got stuck. Freeze हो गया. Freeze. Okay. Guys, लिख लेना. Till then I'll get back my screen. Coordinating conjunctions लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है. हाँ, शाबाश साहब. Okay. जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना. Okay. We have something called the fanboys. ये आया हमारा fanboys. एक सेकंड होगा, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ. Okay. ये आया हमारा fanboys. ठीक है. अब fanboys का fanboys इस ये नॉट ये वाला fanboys. Actually हम लोग ने इनिशियल्स ले लिए हैं. F यानी कि for, ठीक है. Right. A is at, sorry, N neither, right, बीच में लोग आ रहे हैं. Right. neither अलग है, वो अलग, ये अलग. Right. ठीक है. रुक जाओ. Keep your queries. मैं आती हूँ उसमें. But B is but, right. O is or, right. Y is yet, ठीक है. And S is for still. So अब B में है ना, एक और आएगा but के साथ we have because also. But or because. These are what we call as fanboys. Okay, guys, just hold on a minute. I'm just going to switch my screen for a minute. Hold on a second. Nor, and I knew it. Guys, just hold on a second. I'm so sorry. There is a, okay, one second. Okay.
मैंने ये जो एंड लिखा है ना, एक्ट लिखा है, ए के बाजू में एक्ट लिखा है, एक्ट नहीं है एंड है. आई न्यू इट, आई वाज मेकिंग अ मिस्टेक. ओके, वो एंड है. F for A and, right? N neither comma nor, neither अलग nor अलग, right? B but because, O or, Y yet, S still और so. ये हो गए हमारे कंपाउंड सेंटेंस के फैन बॉयज, राइट? अब इसको फैन बॉयज ऐसे ही बोलते हैं, लाइक जस्ट एक क्विक रिमेम्बरेंस के लिए, राइट? बिकॉज इसके इनिशियल्स हमने लिए हैं. So these are the coordinating conjunctions that we will be using while we are actually, talking about compound sentence. Okay, लिख लिया सब लोगों ने? Have you all written coordinating conjunction fanboys? Okay, right. Now going back to my presentation. ठीक है, all right. So as I was saying, two independent clauses, यानी कि दो simple sentence को ये fanboys use करके we are actually joining, bringing them together. ठीक है, they are joined by these two. Okay, right? Okay. अगर एग्जाम्पल देखना चाहोगे, the shoplifter had stolen clothes. कि वो सो मत देखना. The shoplifter had stolen clothes. He ran once he saw the police. दो डिफरेंट सेंटेंसेस हो गए हमारे. दो डिफरेंट हुआ है कि नहीं? अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, राइट? The shoplifter had stolen the clothes, so he ran once he saw the police. राइट? ज्वाइन हुआ, मीनिंग हो रहा है, देयर इज मीनिंग टू इट, राइट? वो, ठीक है, वो चोरी करके भाग गया. क्यों भागा? इज बिकॉज उसने पुलिस को देखा, इसलिए वहां पे सो आया. ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द कंजंक्शन सो आर कंप्लीट सेंटेंसेस. दोनों कंप्लीट है, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बोथ आर सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, हमने उसको ज्वाइन किया यूजिंग द फैन बॉय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो. So use case की वजह से that becomes a compound sentence. एक और देख लेते हैं. They spoke to him in Spanish, but he responded in English. ठीक है, again they spoke to him in Spanish, he responded in English. मुझे इसको जोड़ना है, right? इसे मैंने I use the word conjunction but. ठीक है, compound sentences क्या पता चल गया क्या है कैसा है करके, right? अब हमारे जो fan boys में जो conjunctions है, right, going back, जैसे कि for, right, these are actually used in a different manner. ठीक है, अब से for example अगर मैं so लेती हूँ, so का यूज होगा when we have a result. so का यूज होगा when we have a result. कोई result बताना है, cause and effect. cause and effect वाला statement या sentence आता है, compound sentence आता है, right? तब जाके हम so यूज करते हैं, right? ये मतलब to show the future, something is, right? The train is late, it has not arrived. ठीक है, the train is late, right? It has not arrived. गलत sentence. Okay. Yet is actually time में use करते हैं when we want to show in the future. I'll give you a sentence. ठीक है, मैं पहले सबके meaning बता देती हूँ. और when we have choice, choices का मतलब है you can have tea, you can have coffee, you can have tea or coffee. चॉइस आया, वो चॉइसेस को हमें जोड़ना है, इस वजह से आई यूज द वर्ड कंजंक्शन और. ठीक है गाइस, आई वुड लाइक टू हैव द वीडियोस अप सो दैट आई कैन सी व्हाट यू गाइस आर डूइंग. ठीक है, नॉर इज नेगेटिव जैसे आते हैं, राइट? नेगेटिव चॉइसेस जैसे आते हैं इसलिए नॉर. आई विल कम बैक टू. फिर एंड इज जब हम लिस्ट आउट करते हैं चीजों को, हम जब लिस्ट आउट करते हैं, राइट, तब जाके एंड यूज होता है. ठीक है, understood. There is a reason why we are actually using these particular conjunctions, like because वो independent clauses को join करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Okay, simple and compound sentence दोनों में कोई doubt है? Do we have any doubt in both the sentences? Give me a thumbs up if you have understood. Good. All right, moving on. Okay, coming to the complex sentence. complex ही है, राइट? अब जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए यूज कर रहे थे, वैसे ही हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. व्हाई? इज बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस का फंक्शन क्या है? वी आर जॉइनिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज. आई एम गोइंग बैक टू माय व्हाइट बोर्ड.
when I am talking about subordinating conjunction, right? Subordinating word से ही हमें पता चलता है it is actually joining a full sentence to a half. Subordinating conjunction. Subordinating conjunction, right, is used to join an independent clause, right? Independent clause समझ गए ना? Simple sentence. An independent clause to a dependent clause. Dependent clause का मतलब है it is a half sentence. मतलब it is can be a phrase, right? Can be a what to say, सिर्फ बोलते हैं ना predicate part है, उसको हमें join करना है to a dependent clause. Dependent clause. ठीक है? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है और क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीनिंग इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज. वी आर जॉइनिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर. किससे होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसका काम ही राइट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करना है. राइट? फॉर एग्जांपल इसमें कोई फैन वॉइस नहीं है. फॉर एग्जांपल ऑल्दो, राइट, ऑल्दो, फिर नीदर, ये अलग है गाइस, नीदर नॉर, वर्ड कॉम्बो जो हम यूज करते हैं ईदर और, राइट, इफ, when, right, etc. There are many more, just an example, right? So these are actually used to combine an independent, a simple clause, a complete sentence to a half sentence. ठीक है? ओके, ये फंडा पता चला. कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड? डोंट वरी, राइट? कॉम्प्लेक्स ऑलवेज बच्चे लोग को इंडाइजेशन दे ही देता है. इंडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? राइट? सब खिचड़ी है ऊपर, पता है. ये वाला ऐसा ही है जो इंडाइजेशन दे ही देता है. ओके, थांबा. ये someone want to ask something? Please mute your mic. Thank you. Okay. देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या था? उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं. सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं करना है हमें. दो सेपरेट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है? ऑलराइट? ओके. वो पता चला सबको? That we understood compound sentence. Yes? उवेश पता चला? उवेश क्या खो गया? हाँ, गुड. सपनों में खो गया. ओके, ठीक है. फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. A complex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clauses. यानी कि एक से ज्यादा phrases या phrasal या half sentence को हम लोग join कर रहे हैं. ठीक है? अब उसको डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज या तो उसमें कोई वर्ब नहीं होगा या सब्जेक्ट नहीं होगा. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट क्लॉज इज बिकॉज आइदर इट विल नॉट हैव अ सब्जेक्ट, वर्ब और एन ऑब्जेक्ट. कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, राइट? एंड इट नीड्स अनदर सेंटेंस का सपोर्ट टू बी कंप्लीटेड. इसे उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. ठीक है? डिपेंडेंट क्लॉज पता चला. जैसे एन ओल्ड मैन डिपेंड्स वॉकिंग स्टिक, चलने के लिए वॉकिंग स्टिक चाहिए, वैसे डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प चाहिए टू बी कंप्लीट. ना अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सबऑर्डिनेटर. जैसे कि मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैज अ सबऑर्डिनेटर एज बिकॉज सिंस. अब बिकॉज यहाँ पे भी यूज होगा, वहां पे भी यूज होगा. गाइस, कंटेंट का डिफरेंस है, प्लीज नॉट गेट कंफ्यूज. सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, ठीक है, हु, दैट, ये सारे सबऑर्डिनेटर्स के साथ यूज होता है. ठीक है? ऑलराइट. आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज फैक्ट्री, चीज केक फैक्ट्री, टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज. अब टिम वेंट टू जिम टू एक्सरसाइज, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ. ये दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट? तो आगे का जो है आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज केक फैक्ट्री, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ. राइट? नाउ how actually to recognize which is a compound sentence and which is a complex sentence? A complex sentence में ध्यान रखना, complex sentence में the conjunctions are always either at the beginning of the sentence, right? Beginning of the sentence में आएगा. ठीक है? And वो लोग की जो जगह है, placing है, it can be anywhere in the sentence. A subordinator can come in any part of the sentence, right?
कंपाउंड सेंटेंस में आगे नहीं आता है. देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड प्लेस, राइट, जहाँ पे दो सेंटेंसेस ज्वाइन हो रहे हैं वहां पे उसकी एक फिक्स्ड प्लेस होती है. ठीक है, दोनों का फर्क पता चला? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड. यस, दोनों का मीनिंग पता चला एवरीवन? ओके ओके ओके, ठीक है, ऑलराइट. तो पहले हम जब when we are actually transforming the sentences, right, we need to identify them first. Okay, we need to identify कर पाओगे तो ही तुम लोग ये ट्रांसफॉर्म कर पाओगे. ठीक है, ओके, ऑलराइट. तो ये 3 ओके है या इंडाइजेशन हुआ? व्हाट्स इट? These 3 are understood by you guys? पता चला तुम लोग को? इंडाइजेशन तो नहीं हुआ मैं? Okay, moving on. Okay, just hold on. Okay, last but not the least, FYI for your information. महक इधर ध्यान दो. Thank you. ठीक है, so we have compound complex sentences. Compound complex, just like the concept is going. Compound और complex को हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं. We are actually joining both of them together. हम दोनों को जोड़ रहे हैं. कैसे होगा? A compound complex sentence has 2 independent clauses and at least 1 dependent clause. 2 simple sentences होंगे and एक dependent वाला होगा. बता दी. Look at the examples. After the 2 soccer players lost their game, they joined other teammates for lunch and they went to the movies. Right? मतलब ये देखो, ये वाला जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ? देखो, इसको मैं अलग करूंगी तो इसमें मीनिंग होगा. ये जो मैंने हाईलाइट किया है, आफ्टर 2 सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, इसको मैं अगर अलग करूंगी, विल देयर बी एनी मीनिंग टू इट? हरी मीनिंग होगा? नहीं होगा. इसे उसको डिपेंडेंट बोलते हैं. राइट? तो वो हो गया हमारा 1 डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, दे जॉइन देयर टीममेट्स फॉर लंच. कैन आई से दिस इज 1 सेंटेंस? ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट है. ओके, दे वेंट टू द मूवीज. ठीक है, दे वेंट टू द मूवीज. ये अनदर सेपरेट सेंटेंस हुआ, उसको मैंने जोड़ा है यूजिंग द कोऑर्डिनेटर एंड. ओके, कंफ्यूजन है? यस, हरी के चेहरे से दिख जाता है. ओके, महक, कंफ्यूजन है. ओके ओके. कंपाउंड सेंटेंस क्या है वो पता चला सबको? कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? राइट, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम लोग जोड़ रहे हैं. एंड, सो, बट, फॉर, राइट, ये सारे कोऑर्डिनेटर स्टैंड बॉयज को यूज करके हम लोग जोड़ रहे हैं. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट यानी कि सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस मतलब कि जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है. ये पता चला? ये गॉट इट? वो कंपाउंड सेंटेंस हुआ. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और 2 डिपेंडेंट क्लॉज होगा. डिपेंडेंट का मतलब है उसमें या तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मिसिंग होगा. एंड अगर उसको हम अलग करने जाएंगे, इफ यू गो टू सेपरेट देम, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. वो खुद से खड़े नहीं रह पाएंगे. दे नीड सपोर्ट. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट होगा एंड 2 या 3 डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे. राइट, जिसको हम लोग ज्वाइन करें सबऑर्डिनेटर्स के साथ. ऑल्दो, आफ्टर, सो, सॉरी, सिंस, राइट, ऑल्दो, इफ, ऑल्दो, सो, येट, बट ऑल्सो वर्ड कॉम्बिनेशंस आते हैं. राइट, तो दोज आर सबऑर्डिनेटर्स. गॉट इट? वो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता चला? महक, उवेश, ऑलराइट. ध्रुवी, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर लिसनिंग टू मी. ठीक है, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं. कंपाउंड, थैंक यू ध्रुवी. राइट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, राइट, दोनों की क्वालिटीज आएंगे इसमें. क्या होगा? ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट यानी कि 2 सेपरेट सेंटेंसेस होगा और एक हाफ सेंटेंस होगा. राइट, हाफ सेंटेंस, राइट, being used by a subordinator. First वाला एग्जांपल देखना. After is a subordinator, right? तो हो गया पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
आफ्टर द टू सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला पार्ट. अब आते कंपाउंड सेंटेंस वाला पार्ट. दे जॉइंड अदर टीममेट्स फॉर लंच एंड दे वेंट टू मूवीज. ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस हमारा, राइट? ठीक है, ओके. इसलिए इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं बिकॉज इन सबको हमने साथ में लिखा है, राइट? एंड ऐसे सेंटेंसेस में, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, हम लोग सबऑर्डिनेटर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स साथ में यूज करते हैं. जहां पे जरूरत हो, वेरेवर रिक्वायर्ड, वी आर यूजिंग सबऑर्डिनेटर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स. ओके, अब पता चला महक? अब पता चला? ओके ओके. सो ये कॉन्सेप्ट इज थोड़ा बैठ गया कि उछल गया? बैठ गया? डन है? ओके, so I am coming back to the screen. Okay, all right. So guys, are we clear with what transformation of sentences actually are? Don't know, according to use and according to form. Give me a thumbs up if you have understood. Okay, Dhruvi has understood. Tisha, Reza has understood. Anand? Okay, okay, right? Okay, 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 all right. So ये फंडा इज क्लियर. ठीक है. सो फ्राइडे व्हेन वी आर कमिंग, हम जब फ्राइडे को मिलेंगे, राइट, फर्स्ट वी विल हैव एन ऑनलाइन टेस्ट. डोंट वरी, मैं ये सारा सब कुछ भेज देती हूँ सो दैट यू कैन रेफर बैक. हमारा एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, सभी, हाँ, दोनों का होगा, ट्रांसफॉर्मेशन सबका होगा, ये दोनों पार्ट्स का होगा. पहले वो होगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू फ्लेमिंगो. तो नेक्स्ट सेशन में प्लीज कीप योर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक विथ यू एंड योर नोटबुक ऑल्सो. नोटबुक नहीं था एटलीस्ट, राइट? नोटबुक क्यों? बिकॉज ताकि आप लोग सेंटेंसेस को नोट डाउन कर सके. ठीक है, आई होप, राइट, दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन. कुछ बोरिंग नहीं था. बोरिंग था? हाँ, हैवी ड्यूटी था, थोड़ा हैवी ड्यूटी था. आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ग्रामर का मोस्ट ऑफ द जो 12-13 मार्क का जो हमारा आता है ना, वो इसी में जाता है. ठीक है, ऑलराइट. So guys, I will meet you in the next session on Friday. ठीक है? I hope you have a great week ahead. Thank you so much. Be safe. Take care. Bye bye. Take care everyone.